So this is Financial Accounting 2 for BCom semester 2. So unit 5th we are discussing today, unit 5th. This is accounting for non-profit organization. So short problems I am discussing today. First question will be, this questions I will attach the photo with this video so that you can take a screenshot if you are not finding it clear. Now first question we have, ascertain the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ending 31st December 2005. So if in new textbook it is changed the year, the process will be the same only. ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कुछ ईयर चेंज करे, आपको यहाँ पर जो भी रहा, तो अपने को क्वेश्चन में अपने को जो मालूम करना है, अपने को वो ईयर को अपन कंसीडर करने का रहता. तो अपने को यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का 31 दिसंबर 2005 का मालूम करने का है कि कितना अमाउंट जो है सो अपने को क्रेडिट करने का रहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए सब्सक्रिप्शन. अगर अपने को सब्सक्रिप्शन रिसीव 2005 इज गिवन, सब्सक्रिप्शन 2004 रिसीव इन 2005, the subscription amount which is of 2004 but it is received in 2005. Subscription of 2006, next year subscription also we are receiving in 2005. So how should we deal with that? Outstanding subscription of 2005 also will be there. It's clear now with the question. So subscription received in 2005 is given, and last year subscription is given, and next year subscription is given, and current year outstanding subscription also is given. So what you have to remember, whenever we are calculating the subscription, we have to consider only current year subscription. Last year subscription and next year subscription we have to less. So now see here, subscription received in 2005. We have to start actually for which year the subscription has received, that we have to take it first, 18,000. Now subscription of 2004, it means we are calculating for 2005. So 2004 will be the previous year. So previous year we have to minus 4,000. And subscription of 2006 is next year. So previous year, next year if it is given, you have to minus. Now, so again we are deducting for 3,000. So we are getting 11,000. Current year you have to add. So outstanding subscription of 2005 is 2,500. So subscription of 2005 to be credited to income and expenditure account will be 13,500. Got the answer no? 13,500. It's clear no? सिंपल लॉजिक है. आप लोगों को जो भी क्वेश्चन में आपको ईयर का देते हैं, आपको 2005 का मालूम करे वो, तो अपन 2005 का इससे प्रॉब्लम स्टार्ट करना है. अपने को लास्ट ईयर का माइनस करना है, नेक्स्ट ईयर का दिया अगर सब्सक्रिप्शन तो माइनस करना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिए तो अपने को ऐड करना है. आंसर आपको आ जाता. इट्स क्लियर नो? नाउ नेक्स्ट विल डू द सेकेंड प्रॉब्लम. So let's move to the next problem. Ascertain the income and expenditure towards subscription for the year 2005 on the basis of the following information. Again, subscription received in 2005 it is given 25,000, but it is included 400 of 2004, and subscription in arrear 31st December 2004, and subscription outstanding for 2005. And subscription received in advance as on 31st December 2004, and subscription received as on 31st December 2005. तो अपन जो ईयर का कर रहे हैं, अपन 2005 का कर रहे हैं, तो 2005 को सब्सक्रिप्शन जो रिसीव कर रहे हैं एडवांस में, ये सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर के लिए रहता. ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन अपन 2004 के एंडिंग में रिसीव कर रहे हैं वो अपने को 2005 का रहता. समझ में आ रहा ना? 2004 बोले तो माइनस करना नहीं है अपने को, 2005 बोले तो ऐड करना नहीं है, वैसा कंसीडर करना नहीं है अपने को. यहाँ पर 2004 बोले तो अपने को क्या रहता है, ये 3,000 जो अमाउंट है वो आपका जो है सो करंट ईयर का रहता. ठीक है, सी ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 2005 से स्टार्ट करना है अपने को प्रॉब्लम. सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 2005 से अपने को प्रॉब्लम स्टार्ट करना है. 25,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2004 जो है ना इंक्लूडेड लास्ट ईयर का है, तो अपने को माइनस कर देना है. एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का जो है आपको 1800 वो ऐड करना है. सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31st 12 2004. जस्ट नो आई टोल्ड नो 31st 12 2004 को जो दिए एंडिंग में जो प्रीवियस ईयर में होता वो करंट ईयर से रिलेटेड रहता. ठीक है, अपने को 2005 का शुरुआत होता वो. तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31st दैट मीन्स लास्ट ईयर का जो
एंडिंग का है, एंडिंग का लास्ट ईयर, इट इज़ फॉर द करंट ईयर के लिए रहता वो, ठीक है, करंट ईयर के लिए रहता वो। तो एंडिंग अगर डेट दे रहे हैं आपको तो वो करंट ईयर के लिए रहता है। ऐड करना है अपने को सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, जो पर्टिकुलर अपने को 2005 का कर रहे हैं अब अपन, तो पर्टिकुलर ईयर का जो दे रहे हैं वो क्या रहता है अपने को करंट ईयर में से एंडिंग में जीएसओ रहता, लेकिन दिस इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड रहता, तो अपने को माइनस करने का है। तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड कितना था 28,200। गॉट द आंसर इन दिस प्रॉब्लम। जस्ट टू कंफ्यूज यू, एंडिंग में दे रहे, सो याद रखना है आपको, ठीक है ना। एंडिंग में अगर रहा तो समझ में आ रहा ना आपको कॉन्सेप्ट। वेन एवर द सब्सक्रिप्शन इज गिवन फॉर द पर्टिकुलर ईयर एट द लास्ट, दैट मीन्स दैट सब्सक्रिप्शन इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब वो दिन तो खत्म हो जा रहा, नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन दे रहे, समझ में आ रहा ना आप लोगों को, ठीक है। अब आपको जो है सो पॉकेट मनी है, आपको 31 दिसंबर को दिए अगर आपके फादर पॉकेट मनी, तो वो आप कब इस्तेमाल करते हो उसको, जनवरी से इस्तेमाल करते हैं, तो वो पॉकेट मनी आपकी कई की रहती है, जनवरी की रहती है, ऐसा कंसिडर करना है आपको, ठीक है ना। अगर जनवरी के एंडिंग में दे रहे तो आपको पॉकेट मनी कई की रहती, फरवरी की रहती। ये कॉन्सेप्ट को अगर माइंड में रख लिया तो आप ये टाइप के प्रॉब्लम को ईजी से कर सकते हैं आप। समझ में आ गया ना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 3, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2005। यहाँ पर स्टॉक दिए, ठीक है, ये 4 मार्क्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 जनवरी 2005 की ओपनिंग की स्टेशनरी दे दी अपने को जनवरी में। एंड क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर 1 जनवरी। एंड अमाउंट फॉर पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग 2005 में जो जो स्टेशनरी को अमाउंट पे करे। एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 दिसंबर 2005। सो 4 information given to us. Opening stock and creditors is given, and amount of stationery during this particular year is given, and stock of stationery at the last it is given. So amount of stationery to be debited to income and expenditure account for the year 2005. Amount paid for stationery during the year, we have to take first to 1500, we have to start actually how much amount is paid for the stationery. Then you have to add stock of stationery on 1/1. Opening stock we have to add, and stock of stationery closing stock we have to minus. And creditors for stationery on 1/1/2005, that also creditors for stationery 1/1 is also last year. This is, if it is given on 1/1/2005, that means it is open, it is belongs to last year, so last year we have to minus. Then we will get the stationery used in 2005 1450. इट्स क्लियर नो। ये प्रॉब्लम में अपने को 4 इन्फॉर्मेशन दिए थे, ओपनिंग स्टॉक दिए अपने को, क्लोजिंग स्टॉक दिए, एंड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अपना जो ईयर स्टार्ट होते कि जो दे रहे इसका मतलब वो लास्ट ईयर की है, ठीक है ना। जो भी ईयर स्टार्टिंग में जो दे दिए वो लास्ट ईयर की रहती स्टेशनरी। सब्सक्रिप्शन वो लास्ट में दिए, सो करंट ईयर का रहता अपने को, लेकिन स्टेशनरी को कंफ्यूज मत हो आप लोग। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी लास्ट का है ये, ठीक है, लास्ट ईयर में अपन बेचे थे। क्रेडिटर्स मीन्स वी परचेज कर रहे थे अपन, अब अपने को देने का है, ठीक है। क्रेडिटर्स बोले तो अपने को लास्ट ईयर का परचेज करे, सो अपने को वो अमाउंट है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो। एंड अमाउंट ऑफ स्टेशनरी से अपने को प्रॉब्लम स्टार्ट करना रहता 1500 से, एंड क्लोजिंग भी जो है सो अपने को माइनस करने का रहता। इट्स क्लियर नो। Now next problem number 4th. Ascertain the amount of stationery debited to income and expenditure account for the year ended 31st December 2005. Again we have the question, stationery का amount कितना डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। सो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1/1 is given opening, and creditors of stationery on 1/1 I told you just now we have done no. तो creditors जो है सो ये लास्ट ईयर के रहते अपने को माइनस करने का रहता। एंड एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम 2004। एडवांस पे करके रखे थे अपन, ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड करे। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, इससे अपने को प्रॉब्लम स्टार्ट करना रहता पेड ड्यूरिंग द ईयर से। एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया अपने को, ओपनिंग ऐड करना रहता, क्लोजिंग माइनस करना रहता। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 31st, अब ये क्लोजिंग है ये अपने को, तो ये क्या क्या रहता है, ये क्लोजिंग 2005 के है, तो ये नेक्स्ट ईयर का जो है सो दिस इज क्रेडिटर्स ऑन स्टेशनरी 1/1 जो था वो जो है सो अपने को लास्ट ईयर का था, ठीक है। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 31 दिसंबर
एडवांस पे करे, दो भी आ रहे हैं यहाँ पर, क्रेडिटर्स भी आ रहे हैं अपने को यहाँ पर, एडवांस भी आ रहे हैं, ठीक है। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम 2004 से एक लाइसो है, और एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर, ये जो अपन कल कैलकुलेट कर रहे हैं उसका एंडिंग का भी एडवांस दिए सो है अपने को। समझ में आ रहा ना क्वेश्चन? तो अपने को क्या करना रहता है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2200 से स्टार्ट करना है, एंड स्टॉक फॉर ओपनिंग स्टार्ट ऐड करना है, क्लोजिंग माइनस करना है। ये तो समझ में आ गया ना। क्रेडिटर्स का भी बोली ना मैं आपको, 1/1/2005 को स्टार्टिंग में जो रहते वो लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स रहते, ठीक है, लास्ट ईयर अपन परचेस करे सो रहते, तो माइनस करना है। और 31 2020 के करंट ईयर के रहते, ये करंट ईयर के रहते इसलिए इसको अपन ऐड कर रहे हैं, ये लास्ट ईयर के रहते इसलिए अपन इसको माइनस करना है, ठीक है ना। अब एडवांस पेड का क्या है, देखिए, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी इन 2004, लास्ट ईयर में 2004 में एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी जो है सो 2004 का जो एंडिंग का दे रहे फॉरवर्ड अपन, तो ये करंट ईयर का जो है सो यहाँ पर एडवांस पे करे थे अपन, तो करंट ईयर का एडवांस पे करे तो अपन ऐड कर देने का है अपने को 100 रुपीज़। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी इन 2005 में जो अपन एडवांस दे रहे वो अपन जो है सो नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहे, तो अपने को माइनस करने का है। समझ में आ रहा ना कॉन्सेप्ट? एडवांस अगर लास्ट ईयर में दिए थे अपन तो ये करंट ईयर का रहता ऐड करना है। अब ये मंथ, ये साल तो अपना खत्म हो जा रहा, 31 दिसंबर 2005 को अगर आप कुछ एडवांस दे रहे हैं, इसका मतलब आप नेक्स्ट ईयर 2006 के लिए एडवांस दे रहे हैं आप, तो इसलिए अपने को यहाँ पर माइनस करने का है ये। इट्स क्लियर नो? once again I'll repeat it, advance paid for stationery से we have to start the problem, stock opening stock we have to add, closing stock we have to minus, and creditors on 1/1 it will be the for the last year we have to minus, and creditors for this particular year ending means for the next year we have to 31st, this is for the current year, we have to add it, creditors for stationery on 31st, that means particular year creditors this are we have to add this, and advance paid for stationery in 2004 means current year advance we have paid, so we are adding, and advance paid for stationery in 2005 means we are paying for the next year, so that's why we are deducting this. So stationery used in 2005 2650, we got the answer. It's clear no? Now next move to the next problem. See, this is RP Trivedi textbooks problems I am solving, and next fifth question we have, show the treatment for the following: prize fund, prizes given, prize fund is given and prizes given, investment of prize fund, investment of prize fund is given, and interest on investment of prize fund is given, match expenses paid. So total how many? 5 information give us to us. It's clear? Show the treatment for the following. So treatment of the following, just you have to show prize fund. Investment means you have to take it in balance sheet asset side, and prize fund we have to take it on liability side. In that interest of prize fund we have to add, and prizes given we have to minus. Like that you have to take it into the balance sheet. Just how you will treat this in the balance sheet you have to show. And match expenses paid ₹500 will be debited to income and expenditure account. It's clear no? That's all. This much you have to do. If you get this the question, treatment of this, if you get so you have to present in it this problem in this way. खाली आपको इतना ही करना है. प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट एसेट होता, प्राइस फंड में प्राइस इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड के इन्वेस्टमेंट का ऐड कर लेने का है, और प्राइसेस जो भी गिवन दिए वो ये फंड में से माइनस कर देने का रहता है, और मैच एक्सपेंसेस पेड जो भी रहते हैं, ठीक है, मैच एक्सपेंसेस पेड जो है वो जो है सो अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करने का रहता. It's clear now? Now next we will see problem number 6th. On the basis of the following information, prepare the opening balance sheet as on 1/1/2005. Opening balance sheet, it has asked us to prepare. So cash at bank is given on 1/1/2005. Cash at bank of closing balance is given of the bank. Furniture opening balance, furniture purchase in 2005 is also given. Books on 1/1/2005. Investment on and subscription received in 2005. And 3 are given for 2005-2006. Salaries paid in 2005 including 2004. So what we have to find out here, opening on the basis of the following information, prepare the opening balance sheet. If you prepare the opening balance sheet, you will get the capital fund also, I think so. So let's see. Opening balance sheet, cash at bank, if it is given no, first on cash at bank is, it is given no 1/1
2005 2000 rupees we have taken. Furniture on 1/1 2005 5000 we have taken. And books on 1/1 2005 we have taken 6000. Investment we have taken 4000. And subscription outstanding for 2004. In the opening balance sheet we have to take the 2004 only, because 2004 subscription is related, ending if it is given, it is related to the current, it's come under the opening balance sheet. So subscription outstanding of 2004 we have to take it on the balance sheet asset side. And outstanding subscription for the 2005, outstanding subscription for the 2005 we have to take it on the liability side. We have to pay that 2005 subscription 2000 rupees. This is outstanding subscription for 2006 sorry, we have to take, that means next year subscription 2006 subscription we have to take it on the liability side. And the balance we will get, that is called as capital fund. It's clear, no? And the balance sheet total will be 18,500. Got the answer, no? First you have to take all the assets, opening assets only, and outstanding subscription of for 2004, that will become comes on the asset side. That means advance we have paid, so that's the amount, 2004 amount, whatever advance we have taken, that is for the for us it is a asset only. And for 2006 we have to pay, it is a liability. That's why outstanding subscription of 2006 we are taking 2000 as liability. So after adding this all 18,500 we are getting on the asset side. From there we are deducting outstanding expenses. So balance we will get 16,500 and the balance sheet total will be 18,500. It's clear, no? Now next, let's move to the next problem. Problem number 7th. Prepare receipt and payment account for the year ending 31st. Receipt and payment account we have to prepare here. Cash in hand, cash at bank opening is given. Subscription received in 2005 is given, including 2000 for 2004 and 3000 for 2006. Subscription outstanding is given on 31st December. Investment one is given. Investment purchased. Interest on investment received is given. So it has asked us to, more information is given to us. Interest on investment outstanding, library books opening is given, books purchased, rent paid, rent outstanding, cash in hand. So receipt and payment account, in receipt and payment account we have take receipts. This is a pro forma receipt and payment account for the year ended 31st December 2005. रिसिप्ट साइड जो भी रिसिप्ट आए अपने को, और पेमेंट साइड में पेमेंट. तो यहाँ पर अपने को जो जो रिसिप्ट आए, ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक से अपने को प्रॉब्लम स्टार्ट करना है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के. सब्सक्रिप्शन रिसीव 40,000. सो इन रिसिप्ट एंड पेमेंट ये इंक्लूडिंग जो भी देते ना, ये प्लस माइनस कुछ भी नहीं रहता. जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करे वो पूरा अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट में लेना रहता. इट्स क्लियर, नो? अपने को ये जो भी करते अपन एडजस्टमेंट्स, वो एडजस्टमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करना रहता, अपने को माइनस करके लेना वगैरह. लेकिन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट में डायरेक्टली आपको 40,000 पूरे लेने का है यहाँ पर, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव 1500 एंड इन्वेस्टमेंट बाय परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1005 पेमेंट होता ना वो, तो इसलिए क्रेडिट साइड आता, वो पेमेंट्स में आता. परचेज ऑफ बॉन्ड्स पेमेंट है, वो भी है अपने को. इन बॉन्ड्स इज, दैट इज बुक्स, आई थिंक बुक्स, सॉरी, दिस इज बुक्स. परचेज ऑफ बुक्स 3000 इट हैज गिवन, नो. So payment है, rent paid 1800 and by balance carried down. By balance carried down we will get the answer. Outstanding we are not taking here. Rent outstanding, only rent paid. कितना actually pay करे अपने को वही लेने का है यहाँ पर. Outstanding नहीं लेने का है अपने को, ठीक है. And interest on investment, आउटस्टैंडिंग जो है ना, आउटस्टैंडिंग चीज़ों को आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं लेने का है. जो भी ओपनिंग है वो ले लेने का है. पेमेंट जो भी करे वो क्रेडिट साइड लेना है. कैश इन हैंड भी दे दी अपने को, क्रेडिट साइड 5000. ये आंसर अपने को सिर्फ जो है सो मालूम होता है यहाँ पर, ठीक है ना. पूरे ये ऐड कर लेना 58,500. उस यहाँ तक का टोटल करके माइनस करें तो आपको बैलेंसिंग फिगर 43,700 आता है. एंड रिसीव पेमेंट अकाउंट का टोटल आपको 58,500 आना है. वी गॉट द आंसर करेक्टली, नो. Now let's move to the next problem. Are you able to understand? If you didn't subscribe my channel, please subscribe it. And if you want me to continue other units also in the same way, you have to comment and you have to like this video.
So now next problem we have problem number 8th. Ascertain the amount paid for stationery during 2005. Expenditure towards stationery as per income and expenditure account 2005. Stock of stationery on 31st December and stock of stationery on opening stationery, closing stationery is given, and income and expenditure account 800 it has given. So calculation of problem number 8, I read problem number 9. So problem number 8 is, on the basis of the following information, ascertain the subscription actually received in 2005. So again, subscription, this is frequently asked into the exam for the 4 mark short question, and it is helpful for you if you are perfect in this calculation of subscription, then long problem easily you can do it. So concentrate here. And then subscription as per income and expenditure account. Subscription as per income and expenditure account is given 2005 5000. The subscription received in advance 31st December 2005, and or subscription outstanding on 31st December 2005, subscription in arrears on 1/1/2005. Be careful regarding the dates. ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बोले तो अपने को 31st December 2005 2005 को अगर अपन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, पहले अपने को सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से स्टार्ट करना है प्रॉब्लम. उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31st 12/2005. तो ये करंट ईयर का है, अपने को यहाँ पर ऐड कर लिया इसको. ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन करंट ईयर है 2005. देन 5200 ऐड कर लिए. देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st December 2005. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31st December को 2005 के. सो दैट मीन्स इट इज नेक्स्ट ईयर वी हैव टू कंसिडर. सो वी आर टू माइनस. देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/1/2005. 1/1/2005 को जो है सो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो करंट ईयर से रिलेटेड रहता. स्टार्टिंग में रहा तो करंट ईयर का है ये. सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस क्लोजिंग का देखना रहता. ठीक है, बी केयरफुल. क्लोजिंग का अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है तो वो करंट ईयर का रहता, लेकिन आउटस्टैंडिंग में स्टार्टिंग का इतना याद रख लिए तो आप लोग बस है. ठीक है, आई एम गिविंग हिंट ईयर. रिसीव अगर दे रहे तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर क्लोजिंग को देखना है और ऐड करना है. ठीक है, आउटस्टैंडिंग दे रहे तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर ओपनिंग को देखना है, ऐड करना है. सेम वैसे रिसीविंग अगर अपने को रहा, ठीक है, ओपनिंग में तो माइनस यहाँ पर ऐड कर रहे ना, वहाँ पर माइनस करना रहता, ऑपोजिट करना रहता आपको इसका. सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/1/2005. ठीक है, 1/1/2005 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है. तो यहाँ पर अपने को क्लोजिंग था तो अपन क्या करें, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का बोल के माइनस करें. फर्स्ट ईयर है तो अपने को करंट ईयर का है बोल के यहाँ पर ऐड करना है. सब्सक्रिप्शन एक्चुअली रिसीव्ड इज 4800. दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू हैव टू प्रैक्टिस. इट्स क्लियर नो? Now let's move to the next problem. Problem number 9. Ascertain the amount paid for stationery during 2005. ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, स्टॉक क्लोजिंग एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग इज गिवन. असर्टेनमेंट ऑफ अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 2005. एक्सपेंडिचर टुवर्ड स्टेशनरी एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन, दैट वी हैव टू टेक फर्स्ट. देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन ओपनिंग वी हैव टू माइनस, एंड क्लोजिंग वी हैव टू ऐड. अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी वी विल गेट द आंसर. Now next problem number 9th. Over no, problem number 10th this is. From the following particulars, prepare receipt. Again one more receipt and payment account we have to prepare here. कैश इन एंड कैश एट बैंक. रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या रहता है, आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के कैश इन एंड कैश एट बैंक ले लेना. जो भी आ रहे पैसे रिसिप्ट में, जो भी पेमेंट हो रहा वो पेमेंट साइड में. ठीक है, इन्वेस्टमेंट परचेस करे अपन तो पेमेंट में आता, जा रहे पैसे अपने पास से. जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट में आता, डोनेशन रिसिप्ट में आता, रेंट पेड, पोस्टेज, कैश बैलेंस दे दिए अपने को. ठीक है, जो भी रिसिप्ट में आ गए अपने को, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट परचेज, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, रेंट पेड, बैलेंस कैश डाल दिया अपन. ये टोटल कर लेने के बाद यहाँ तक के टोटल को, ठीक है, 24160 में से यहाँ तक के टोटल को माइनस कर लेके अपन को माइनस करे तो अपने को ये जो आंसर आता है उसको बैलेंस शीट फिगर बैंक बोल के लिखने का रहता. That's all. So easy. Receipt and payment account, if you left 4 marks easily, you can get it. Now let's move to the last problem, short problem 11th. Afterwards we have 11 long problems. If
you like this video, then you have to comment, and you want me to continue, you have to comment it, that then only I will continue with the long problems. So let's move to the, if you didn't subscribe my channel, please subscribe it. Now onwards you will get all the subjects below also, and Arabic also I have uploaded on this channel. In English also I have uploaded, so you can get all the different subjects also at one place only. So please subscribe to my channel and watch all the videos. If you have any doubt, you can ask anytime through the comments. Now let's move to problem number 11. From the following particulars, prepare income and expenditure account. Again here now income and expenditure का अकाउंट में अपने को आउटस्टैंडिंग और जो ब्रैकेट में देते हैं ना वो पूरा कंसीडर करने का रहता, ठीक है. रिसीप्ट एंड पेमेंट में सिंपली अपने को रिसीप्ट आ रहे सो पेमेंट हो रहा सो लेना रहता, बट वट एवर द गिवन हियर नो इन द ब्रैकेट, दिस यू हैव टू कंसीडर. सो नाउ लेट्स सी. Fee collected including 3,000 on account of last year. Total is 28,000. Fee for the year outstanding. Salary paid, it is 300 on last year. Salary outstanding also will be there. Entertainment expense, tournament expense, meeting expense, travel and convenience. And you have purchase of books and periodical, including 2,000 for purchase of books. Rent, postage, printing and stationery, donation received, tournament fund. So these are the information given. Expenditure account we have to prepare. The pro forma for income and expenditure account is expenditure amount, income amount, ठीक है. प्रोफॉर्मा क्या रहता है आपको, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट रहता. पहले अपने को सैलरी पेड कितना है, अपने को 2,400 सैलरी पेड है, ठीक है. सैलरी से अपन स्टार्ट कर रहे पेमेंट. सैलरी पे 2,400 है, उसमें से जो है सो ये ब्रैकेट में जो लास्ट ईयर का दिया अपने को माइनस करने का रहता और आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करने का रहता, ठीक है. ब्रैकेट में जो भी रहता वो माइनस करना है और आउटस्टैंडिंग दिए सो ऐड करना है. एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, मीटिंग एक्सपेंस, ट्रैवल कन्वीनियंस, पीरियोडिकल परचेज, रेंट, पोस्टेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये पूरा अपने को एज इट इज यहाँ पर ले लेने का रहता. अब फी रिसीव में देखिए आप लोग, फी रिसीव कलेक्टेड 28,000, लास्ट ईयर के 3,000 है ना, माइनस कर देना है, और करंट ईयर की फी फॉर आउटस्टैंडिंग 5,000 है, उसको ऐड कर देने का रहता, ठीक है. लास्ट ईयर है तो माइनस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग रहा तो ऐड करना है. डोनेशन रिसीव, डोनेशन, टूर्नामेंट फंड, कौन सा भी फंड रहे दो आपको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आता, ठीक है. फंड नहीं लेना का रहता यहाँ पर आपको, ओनली डोनेशन रिसीव वी हैव टू टेक इट ऑन इनकम साइड. तो यहाँ पर अपने को टोटल करने के बाद जो है सो, अगर इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंडिचर साइड कम है, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसको सरप्लस बोलते हैं, ठीक है. ये टोटल में से यहाँ तक के टोटल को माइनस करे तो आपको 20,600 आंसर आता. इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, सरप्लस बोल के बोलते हैं. इट्स इजी नो, सो प्रैक्टिस इट वेल. All the short problems, if you are perfect, then long problems will be easy for you. 50% your work will be completed if you are perfect in this particular 11 short problems. So don't forget to watch next video. I am starting long problems. So all the best. Write well into the exam.